Hello students. In our last video lecture, we learned about major events of the world history that affected our Indian history, like Renaissance, Industrial Revolution, discovery of new sea routes, imperialism and colonialism. Now, in this video lecture, we learn about nationalism and uprise against colonialism and an introduction to the sources. French Revolution of 1789, with basic ideas of liberty, equality, and fraternity, inspired the people all over the world. 1789 में जब फ्रांस में क्रांति आई तो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचारों के साथ दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया. The American War of Independence sowed the seeds of nationalism. स्वतंत्रता के लिए जब अमेरिका में युद्ध हुआ तो उससे सारी दुनिया में राष्ट्रवाद के बीज बोए गए. मतलब अलग अलग गुलाम देश जिसके ऊपर किसी ना किसी का शासन था, वो सब के अंदर एक प्रेरणा जाग उठी नेशनलिज्म की, इंडिपेंडेंस की. राजाओं के शासन को हटाया गया और दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र की सरकारें स्थापित की गई. The countries under foreign domination began to struggle to overthrow foreign rule and establish itself as a nation. विदेशी शासन वाले देश विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने और खुद को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करने लगे. In the 19th century, there were struggles for freedom and national unification in Germany, Italy, Greece, Poland, and other European countries. Germany and Italy were the first nations to be united. 19वीं सदी में जर्मनी, इटली, ग्रीस, पोलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष शुरू हो गए. जर्मनी और इटली एकजुट होने वाले सबसे पहले नेशंस थे. Many nations launched their struggle on these lines and gained independence in the 20th century. Thus, they struggled for nationhood tied by common geography, language, and desire to have a democratic setup, which became a potent factor in shaping the history of the world during the 19th and 20th centuries. और कई देशों ने इसी राह पर अपना संघर्ष शुरू किया और 20th सेंचुरी में स्वतंत्रता प्राप्त की. इस तरह वे कॉमन ज्योग्राफी, भाषा और लोकतांत्रिक सेटअप के लिए बंधे हुए राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करते रहे, जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के दौरान दुनिया के इतिहास को आकार देने में एक शक्तिशाली कारण बन गया. The new waves of nationalism that reached the Indian shores shook the very foundation of the British Empire in India and paved the way for the dawn of independence. राष्ट्रवाद की नई लहरें जो भारतीय तटों तक पहुंची, उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया और स्वतंत्रता की सुबह का मार्ग दिखाया. नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द सोर्सेस. द वर्ड सोर्स refers to any piece of writing, books, manuscripts, travelogues, inscriptions, coins, monuments, or any evidence of a particular period by studying which the historians reconstruct history. यहाँ पे सोर्स का मतलब है कोई भी लेखन, पुस्तक, पांडुलिपि या फिर ट्रैवलॉग मतलब यात्रा के दौरान लिखी गई अपनी बुक कि यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, उसे ट्रैवलॉग बोलते हैं. इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पत्थर या कोई भी इमारत हो उस पे लिखा हुआ पूरा डिटेल में रहता है, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. कॉइन्स, स्मारक, जिसको देख के, जिसको स्टडी करके जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार, वो इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, उसे सोर्स कहा जाएगा. मतलब ऐसे सोर्सेस जिसे हमें हिस्ट्री का पता चला, इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि क्या हुआ था या फिर क्या क्या था उस ज़माने में, कॉइन से, मैन्यूस्क्रिप्ट से वगैरह वगैरह.
The sources can be in many forms. They can be manuscripts, officials, documents, films or coins, monuments, or any other material which tell us something about the past. Sources like official records give limited information, that is, the information that was to be conveyed to general public. Other sources of history include diaries of people, pilgrim accounts, and booklets, among many others. Some different sources of history are given below. सोर्स कई रूप में हो सकते हैं. पांडुलिपि में मतलब इंसान की खुद के हाथ से लिखी हुई बुक, ना कि प्रिंट की हुई, उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. पहले के ज़माने में टाइपराइटर वगैरह था नहीं, तो सभी हाथ से ही लिखते थे. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब अधिकारियों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, फिर फिल्में या सिक्के, कोई स्मारक या कोई अन्य सामग्री हो सकती है जो हमें अतीत के बारे में कुछ भी बताता हो. आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे सोर्सेस हमें सीमित जानकारी देते हैं, वो इतनी जानकारी नहीं देते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें उतनी ही जानकारी रहती है जो आम जनता को बताई जा सकती हो. बाकी जो सीक्रेट होता है वो उसमें नहीं रहता. अभी थोड़ा थोड़ा हम ऐसे ही सब सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. Historical monuments are living examples of history. Some of the historical monuments include the India Gate, the Parliament House, the Birla House, and others. Delhi and all the headquarters of the princely states, etc., are associated with great political events. ऐतिहासिक स्मारक जो है वो इतिहास के जीवंत उदाहरण है. कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों में इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, बिरला हाउस और अन्य शामिल हैं. दिल्ली और सभी जो मुख्यालय हैं, जो हेडक्वार्टर्स है हमारे, वो महान राजनीतिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं. इंस्क्रिप्शंस. वर्ड्स और राइटिंग्स इन बुक्स और कार्विंग्स आर टर्म्ड एज inscriptions. For example, Ashoka's pillar inscription gives us information of his time. वर्ड्स लिखे हुए या बुक्स में राइटिंग लिखा हुआ या फिर कार्विंग मतलब पत्थर या स्टोन पे कार्विंग करते हैं, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा अशोका पिलर. अशोका पिलर जो है उस पे पूरा इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है कि वो ज़माने में क्या था, क्या हुआ था. Coins and seals. The coins of a particular era tell us about the monetary transaction made during that era. For example, the coins of various countries that is depicted on each coin. The study of coins is called numismatics. अभी coins और seals. coins से हमें क्या information मिलती है? तो coins से हमें पता चलता है कि वो टाइम में वो रीजन में कैसे पैसों का लेन देन होता था, किस तरह व्यापार होता था, उसकी आइडिया आती है. एग्जाम्पल के लिए कई कॉइन्स में अपने अपने देश के साथ देश के राजा का नाम, वो साल जब ये कॉइन बना था, वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है. कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है. द सील्स कुड बी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर and cylindrical in shapes and were used for various purposes. These seals portray culture and civilization of the period to which they belong. They even show commercial relations, religious beliefs, scripts, genius of an artist, and lifestyle of the people in that era. For example, the merchants also used seals as stamps. Seal मतलब मोहर. ये मोहर जो है ये गोल शेप में भी होती है, रेक्टेंगल शेप में भी होती है और या सिलिंड्रिकल शेप में भी होती है. और ये अलग अलग कई चीज़ों में यूज़ की जाती है, कई चीज़ों में उपयोग की जाती है. ये मोहरें उस टाइम की संस्कृति और सभ्यता को दिखाती है जब वो मौजूद थी. मतलब जिस टाइम में वो मोहर यूज़ की गई होती है वो हमें पता चलता है. ये
उस समय के व्यावसायिक संबंधों, धार्मिक विश्वासों, लिपियों, एक कलाकार की प्रतिभा और उस युग में लोगों की जीवन शैली को भी दिखाती है। उदाहरण के लिए व्यापारी जो है वो सील को एक स्टैम्प के रूप में भी इस्तेमाल करते थे वो ज़माने में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स Manuscripts are collection of original written documents, texts, and scripts which are informative and useful in many ways. Survey. The British believed that if a country had to be administered effectively, then surveys had to be conducted properly to map the entire territory. Apart from topography, soil pattern, vegetation, etc., surveys also assist in understanding the entire history of a country. Taking this advantage into consideration, the British conducted a number of surveys in various parts of the world, like archaeological, botanical, zoological, forest, revenue, census survey, etc. अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि अगर किसी भी देश पे अच्छे तरह से राज करना हो, अच्छे से उस देश पे शासन करना हो और उसको पूरी तरह से शोषित करना हो, तो उसका पूरा सर्वे करना चाहिए ताकि उसका अच्छे से संचालन किया जा सके। टॉपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, जगह का जो शेप होता है। फिर मिट्टी का पैटर्न, वनस्पति वगैरह वगैरह सब कुछ सर्वे करना ज़रूरी है। सर्वे से किसी भी देश के पूरे इतिहास को समझने में सहायता मिलती है, ऐसा उनका मानना था। ब्रिटिश ने ऐसे ही कई सारे सर्वेस किए थे अलग अलग दुनिया की जगहों में उन पर राज करने के लिए। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड क्रॉनिकल्स। Many visiting foreigners give wonderful accounts of rulers, societies, lifestyles, etc. of a particular period. For example, Megasthenes gave a beautiful account of Eohum, Henry Vivian, Derozio and Annie Besant. कई मुलाकातों में विदेशियों ने शासकों, समाजों, जीवन शैली आदि के अद्भुत विवरण दिए। उदाहरण के लिए मेगास्थनीज ने एओहुमे, हेनरी विवियन, फिरोजियो और एनी बेसेंट का एक सुंदर लेख दिया। ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज एंड बुक्स। A biography is a life history of a person written by another person. बायोग्राफी किसे बोलते हैं? बायोग्राफी मतलब किसी भी आदमी की लाइफ की हिस्ट्री के बारे में जब भी कोई भी लिखता है तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और भरतेंदु हरिश्चंद्र की लाइफ की हिस्ट्री के बारे में ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज लिखी गई हैं जिसने उनकी लाइफ के कई सारे पलों को छुआ है। Thus, they are useful sources for historians to study about people and their past. और इसीलिए ये ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार के लिए किसी भी आदमी के बारे में जानने के लिए, उसके पास्ट के बारे में, वो क्या करते थे, क्या क्या किया, वो जानने के बारे में एक बहुत अच्छा सोर्स है। Similarly, books are useful to us in many ways. They portray every emotion, experience, belief, and idea. They are readily available and are a good source of information. For example, novels written by famous novelists like Dickens, Fielding, Munshi Premchand, and others take us to their own world, where they portray the impact of social issues and industrial revolution on people. इसी तरह से बुक्स हमें बहुत काम में आती है। वो हर एक इमोशन, हर एक एक्सपीरियंस, बिलीफ और आइडिया को दर्शाती है और इजीली मिल भी जाती है। ऐसा ही उदाहरण है बुक्स डिकेंस की, फील्डिंग की, मुंशी प्रेमचंद की और अन्य कई लेखकों की जो हमें दिखाती है समाज के सोशल इश्यूज़ के बारे में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लोगों पे क्या असर पड़ा। पेंटिंग्स। Some artists have rendered various aspects of history of their time
by means of art and paintings. Paintings of Raja Ravi Verma, the famous Indian painter of the 20th century, portrayed Indian tradition in his art. Similarly, Jacques Louis David, a French painter, has wonderfully depicted the tennis court oath during the French Revolution. कुछ कलाकारों ने अपने समय के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को कला और चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया है। 20th सेंचुरी के प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार रविराज वर्मा की पेंटिंग ने उनकी कला में भारतीय परंपरा को चित्रित किया। जैक्स लुइस डेविड, एक फ्रांसीसी चित्रकार, ने शानदार ढंग से फ्रेंच क्रांति के दौरान टेनिस कोर्ट की शपथ को चित्रित किया था। द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। The British government introduced a system of writing in each department so that all work could be done smoothly. In the colonial India, memos, letters, notes, reports, written instructions, and directives were sent by the top level British officials to lower levels, which provide valuable information to historians. The British also felt the importance of these official documents, hence, they preserved them carefully in archives. Thus, these sources play a vital role in studying history. ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक विभाग में लिखने के लिए एक प्रणाली शुरू की थी ताकि इसे अच्छे रूप से चलाया जा सके। कॉलोनियल इंडिया में मेमो, पत्र, नोट्स, रिपोर्ट, लिखित निर्देश और ऊपर के जो ब्रिटिश अधिकारी रहते थे वो नीचे के जो ब्रिटिश अधिकारी रहते थे उनको नोट्स भेजते थे, उनको ऑर्डर्स भेजते थे। ये सब आज के जो हिस्टोरियंस है, आज के जो इतिहासकार हैं, उनके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अंग्रेज़ों को भी इन आधिकारिक दस्तावेज़ों का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने भी आर्काइव्स बनाई थी इसे स्टोर करने के लिए। ये सभी सोर्स बहुत काम आते हैं हमारे पास्ट को जानने में, हमारे हिस्ट्री को जानने में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ। होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। Watch this videos carefully, all the 3 parts of this video carefully, review it again and again, and try to understand it as much as possible.